हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है रिमूव के डिजिट्स, राइट। तो हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है नाम विच इज़ रिप्रेजेंटिंग अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, और एक इंटीजर के भी दिया है। सो दिस इज द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, राइट। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर, सी वी कैन रिमूव एनी के डिजिट्स यू वांट टू, राइट। आई कैन रिमूव 143, आई कैन रिमूव 421, I can remove 219, I can remove 329, right? So there can be many possibilities, right? But what you have to return here is you have to remove these k digits, and you have to make sure that after you remove these k digits you get the smallest possible integer value, right? So let us see for the first test case, right? So there can be many possibilities, but if I just remove 4, 3 and 2, what I will get 1219, which is the smallest possible integer for this case, right? Similarly, if I see for this, right, so k is 1, so I can only remove one integer. ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर मैं 2 को remove करूँ, so I'll say 2 is greater, but if I remove 2 I'll get 1000, right? But what if I remove 1? If I remove 1 I'll get 200, right? Which is the smallest possible integer for this case, right? So this is what the question is. हमको क्या करना है, बेसिकली k दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, और इस नंबर से k डिजिट्स हटाने हैं, एंड वी हैव टू मेक श्योर लास्ट में जो हम स्ट्रिंग रिटर्न करें, राइट, तो दैट स्ट्रिंग शुड बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर आफ्टर रिमूविंग k डिजिट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन नाउ, ठीक है, कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ विल वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम, राइट। तो पहला तो ऑब्वियसली अगर हम ब्रूट फोर्स सोल्यूशन की बात करें, सो इट्स जस्ट कि सारे के डिजिट्स रिमूव करके देखो, सो दैट यू कैन अचीव यूजिंग रिकर्जन, है ना। हर बार एक एक डिजिट को रिमूव करके देखो एंड चेक कि, like, keep tracking the numbers that you get and take the minimum out of those possibilities, right? So that is one solution. But because it's brute force, and because if you will do recursion for this problem, right, you are definitely going to get a TLE because it's a medium level problem. So now what can we do, right? कैसे इसको approach कर सकते हैं such that we can solve it optimally, right? Definitely not in a recursive manner. So let us see. So यहाँ पे before we discuss the solution, there is one thing that you need to notice here, right? So let us see what is that thing, right? क्या है यहाँ पे observation ऐसा लग रहा है। तो see, अगर if I take, let's say I take some digits, right? I take 1, 2 and 3. So these are the digits that I've taken. Now if I create the possibilities, right, of these, so how many possibilities can I have? I can have 3 factorial possibilities. So 3 factorial means 6 combinations of these numbers I'll have, right? So I'll have 1 2 3, I'll have 3 2 1, I'll have 1 3 2, I will have 3 1 2, and I can have 1 2 3 is already done. 2 1 3 2 3 1. So these are the 6 possibilities that I can have. But if you see which one of them is the smallest, right? So I can see it is 1 2 3, right? So if you observe all the digits starting from this position, right? So most significant digits position, all the numbers are appearing in increasing order. So that is the observation that we have to, like, pursue here, right? So what we have to do is we have to move from the most significant digit, and we have to keep tracking this increasing order, right? So obviously here we are not guaranteed to have an increasing order only, right? So what we will try to do is we'll try to boil down our number, right, after removing the k digits, such that it comes as close as to an increasing order, right? तो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारे नंबर्स इंक्रीजिंग में ही आ जाएंगे, रिमूविंग के डिजिट्स हमें नहीं पता क्या नंबर्स होंगे, बट व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज वी विल ट्राई टू मेक इट लाइक एज फ्लैट एज पॉसिबल, ठीक है। उस चीज़ को हम जितना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर इज द बेस्ट केस, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आ सकता है तो उसके क्लोज ले जाने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दैट इज़ द ओनली इंट्यूशन हियर। तो लेट अस सी, अगर मैं पहला केस लूँ, राइट, सो लेट अस ट्राई टू सी दम एज दिस, ठीक है, ये 1 हो गया, then 4 is greater than 1, so 4 will be here, 3 will be somewhere here, then we have 2, 2 will be somewhere here, and then we have a 2 again, another 2 will be here, and then we'll have a 1, that 1 will be here, and then we have a 9, that 9 will be here. Now what I'm trying to say is we'll try to convert it, right, such that ki after removing 8 digits,
ये जितना इंक्रीजिंग ऑर्डर की जैसा हो सकता है वैसा करें। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जैसा हम कैसे कर सकते हैं? तो इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे जो पीक जैसी बन रही हैं, इफ़ वी ट्राई टू रिमूव देम, राइट, तभी हम ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। पीक का मतलब है नंबर ऐसे उठा और फिर ऐसे गिर गया, राइट? तो दैट मीन्स दिस पीक इज अफेक्टिंग दिस, राइट? अगर मैं इस पीक को हटा दूँ तो इट विल गेट फ्लैटेंड। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, मैं थी 1 पे 4 पे गए और 4 से 3 पे चले गए, so it's a peak. I'll remove this, so I'll get this number 132219, but still I have k is 3 for here, for this case, right? So again I observe this peak, right? So what I'll say, remove this peak, remove this peak, right? So what I'll say, if I remove this, I'll get this number 12219, right? Now still k is left, right? So we still can remove one digit. So which digit will we remove? So you might say remove 9, but if you can see कि अगर मैं 9 को रिमूव करती हूँ, इट्स अ पीक, राइट? तो व्हाट आई विल गेट 1221, right? But the smallest number is 1219, and obviously 1219 is smaller than 1221. So the height of the peak doesn't matter, right? Height of the peak doesn't matter. What matters is, see, ये वाली जो position है, there's a reason why we call this the most significant digit, right? This is the least significant digit. तो इस ऑर्डर में अगर मैं जा रही हूँ, इस ऑर्डर में, तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उनका वेटेज ज़्यादा है। सो दैट मीन्स आई कैन नॉट सिंपली गो एंड रिमूव एनी पीक, राइट? सिर्फ पीक नहीं रिमूव करना है, आई हैव टू सी कि वेटेज किसका ज़्यादा है। वेटेज तो अभी इधर वाले नंबर का ज़्यादा है, तो मैं क्यों जाऊँगी यहाँ पर और ये पीक रिमूव करूँगी, राइट? सो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव करी तो आई विल गेट 1221, विच इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर तो 9 को इंक्लूड करते हुए आ रहा है, राइट? तो द हाइट ऑफ द पीक डजेंट मैटर, वॉट मैटर्स इज द वेटेज ऑफ द नंबर, राइट? सो डिजिट की वेटेज क्या है? तो अभी ऑब्वियसली 1 था इधर, 1 से 2 पर आए, तो इट्स राइजिंग, राइट? Then here it's flattened. So if I can like remove this 2, right? So if I remove this 2, I'll get 1 2 1 and 9. So obviously अब k क्या हो गया 0. So I can observe that यहाँ पे अब मेरा नंबर क्या बन जाएगा 1219, right? Which is the smallest possible integer. So that is what we have to do in this question. ठीक है, यहाँ पे हमको यही करना है कि हमको जो नंबर दिया हुआ है, right, we have to see the peaks in that. But peaks कहाँ से? Peaks most significant digit की डायरेक्शन से ट्रेवर्स करते हुए वहाँ से peaks हटाते जाओ, राइट? अगर इक्वल हो जाता है नंबर और अभी भी कुछ हटाना है तो वो हटाते जाओ। अब देखो, ऐसा भी तो केस हो सकता था कि मान लो नंबर ही ऐसे रखे थे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ मुझे 3 डिजिट्स हटाने हैं, तो कहाँ से हटाऊंगी मैं? अब तो ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, कि 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ पर है। सो ऑब्वियसली इफ आई वॉन्ट टू मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, आई रिमूव द पीक। तब मैं यहाँ से रिमूव करूँगी, यहाँ से रिमूव करूँगी, यहाँ से रिमूव करूँगी, राइट? एंड आई गेट 1 2 3, राइट, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर इन दिस केस, राइट? सो ऐसा भी केस आ सकता है, तो दैट इज़ ऑल राइट। बट जब मेरे पास पीक आ रही है और मैं किसी नंबर पे हूँ यहाँ पर, एंड आई नो यहाँ पे जाके डिप आएगा, तो व्हाट आई कैन से, इफ आई रिमूव दिस आई कैन फ्लैटन द कर्व एंड आई कैन डिक्रीज द नंबर, राइट? सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है, तो बस हमको यहाँ पर यही करना था। अब हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इट? बिफोर दैट लेट अस ऑल्सो डिस्कस दिस केस, राइट? इस केस के लिए कैसे होगा ये? जैसे मेरे पास 1 है, लेट मी रिमूव दिस। अब 10200, राइट? सो आई हैव 1, डिप आ गया, 0 आया, देन 2 आ गया, दैट्स अ पीक, देन वी आर अगेन एट 0 एंड again at 0. So I have these numbers and I can remove only one number from here. So what I'll say is, see, according to the intuition, I can remove this 1 from here, right? So if I remove this 1, see, we have to handle the cases where we have zeros, right? So अभी देखो, यहाँ से मैं 1 को ही रिमूव करूँगी बिकॉज देयर इज अ डिप हियर, इट्स व्हाट आई विल से, रिमूव 1 बट डू नॉट इंक्लूड दिस 0, राइट? अब क्योंकि यहाँ पे 0 है तो मेरे पास ये नंबर बना, तो आई हैव टू रिमूव दिस 0, आई हैव नॉट टू कंसिडर इट, और ये पार्ट कंसिडर कर लूँगी मैं, ठीक है? तो थोड़ा सा 0 के केस में बस इसको एक्सप्लिसिटली हैंडल करना है, ऑल्दो द इंट्यूशन इज जस्ट द सेम। जैसे डिप आ रहा है वैसे ही नंबर को क्या कर दो, उस पीक को हटा दो, उस नंबर को हटा दो, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है? इसको ही हटा दिया मैंने क्योंकि यहाँ से एक डिप आ गया था। मैंने कहा अब जो आगे नंबर बनेगा, जो बचा हुआ नंबर है, दैट विल डेफिनेटली बी लेस देन दिस,
राइट, क्योंकि 10200, राइट, और यहाँ से 1 हटा दिया तो 0200, इट्स स्मॉलर नंबर, राइट, देन दिस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 था बट ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे रखा था ना, तो इसका वेटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 रिमूव करके वो काम नहीं होगा, एंड दैट वी हैड ऑलरेडी सीन, ठीक है, वो उससे 1000 आएगा बट इससे 200 आ रहा है, राइट। सो फॉर जीरो के केस के लिए वी हैव टू एक्सप्लिसिटली हैंडल दैट, बट द इंट्यूशन इज जस्ट द सेम। जैसे ही पीक आ रही है, कहाँ से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से हमको वो पीक देखनी है, एंड वील कीप रिमूविंग इफ द if we have k value remaining, right, and also if we can flatten the curve, right, so we have to simply check कि अब जैसे मैं इस वैल्यू पे आई, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर एक डिप आ गया, सो आई हैव टू कीप ट्रैकिंग दीज डिप्स, राइट, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू रिमूव द नंबर्स, ऑलराइट। अब इस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे? सो वी हैव अंडरस्टूड द इंट्यूशन, वी हैव अंडरस्टूड द ऑब्जर्वेशन, राइट, वी हैव अंडरस्टूड कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर बनेगा कैसे, राइट, द लॉजिक बिहाइंड इट। नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ सिनेरियो? So the best way to implement this is using a stack, right? So how will this stack help us? Let us see. Again, let us take this case. So we have 1 4 3 2 2 1 9. So now what I'll do is I'll create a stack, right? And I'll keep comparing the top element of the stack and the current element. Now see, we have 1 here, right? So obviously there's nothing in the stack, simply push this number. So we have 1. Now I'll go to the next number and I'll see if the stack top is greater than this number. So obviously not, so we'll include it, right? If it's not greater, include the number. So it's like we are going in increasing order. What we have to keep tracking is the dip. So now as soon as I come to 3, right? So there's a dip, right? I'm observing this dip. So what I have to do is I can safely say, like, if I see k is now 3, right, I can remove a digit. So I'll say removing 4 is far better than removing 3, right? For now, अभी के लिए अगर देखें तो 4 को मैं कहूँगी कि remove 4 and push this number into the stack. तो I'll say जहाँ पे dip आया उसको flatten कर दो और उसके अगले नंबर को ले लो. Again 2 पर है, I can observe another dip. I'm observing another dip. So that means I'm comparing the stack top and I'm comparing the current element. So current element is 2 and there is a dip and k value is now 2, right? So I can definitely remove this digit as well, right? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको remove कर दूंगी so I'm flattening the curve, right? And that means I'm getting the smaller number. So I'll push 2 here. ठीक है, अब मैं आगे 2 पर आई. 2 पर आई, so it's not like it's equal, right? So what we will do is we'll simply put it here. ठीक है, इसको रख दिया. अब we will come to 1. तो जैसे ही 1 पे है, I'm observing a dip again. If I'm observing a dip, I'll say please remove this peak because only then I'll get the lesson number. So I've removed this dip and what I'll say, please pop the stack top and push this number here. So pushed 1 here. Right, then we will come to 9. अब 9 तो बड़ा है टॉप से, so we can simply push 9 here. Also अब क्या हो गया कि I had removed 3, उसके बाद k हो गया था 1, ठीक है. After removing 2, k हो गया 0, right? So k अब 0 है, तो I don't need to remove anything. तो जैसे k 0 होगा ना, so in the iteration what we have to do is we have to keep pushing the numbers, right? क्योंकि k तो 0 हो गया, अब कुछ मैं remove नहीं कर सकती ना, तो जितने नंबर अब आते जा रहे हैं उनको मैं लेती जाऊँगी. Alright, so this is how this stack is going to help us remember, right, कि कहाँ पर डिप आ रही है और बेसिकली ट्रैक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी विच यू आर ट्राइंग टू डू. ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम देख रहे हैं, राइट, एंड देन व्हाट वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व इज द डिप. तो इसका वेटेज ज़्यादा है इससे, सो ये मुझे नंबर पहले चाहिए, राइट. ये नंबर का काम हो चुका, 1 का काम हो चुका, उसके बाद 4 का काम है, राइट. तो 4 आगे मुझे डिप्स देखनी है. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज हाउ द स्टैक is like stack solution is kind of working, right? So I hope this is also clear कि implement कैसे करेंगे and why stack is helping us. ठीक है, तो we've understood this. Now in case, so there are also different conditions that we have to handle. So first one is this only कि मान लो the numbers were already in increasing order, but here using this stack what we are trying to do is, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, we were trying to track these dips, right? अब अगर नंबर ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए, सो मैं स्टैक में सारे एलिमेंट्स पुश कर दूंगी, राइट. तो अगर मैंने जैसे मैंने यहाँ पे देखा था 1 2 2 आया था, मान लो आगे 2 2 आता जाता तो मैं 2 2 को सारे पुश कर देती, बट के में कुछ वैल्यू रह जाती, के में वैल्यू रह जाती और मेरा जो ऑर्डर है वो ऐसे इंक्रीजिंग टाइप है, तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से मैक्सिमम हटाना पड़ेगा, ये हटा दो,
ये हटा दो, ये हटा दो, और जो बचा हुआ इसको ले लो क्योंकि यही स्मॉलेस्ट होगा, करेक्ट। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट, यहाँ मिडिल से लोगे तो भी स्मॉलेस्ट नहीं बनेगा, स्मॉलेस्ट यहाँ पर बनेगा, तो पीछे से मैक्सिमा हटाएंगे इन केस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। देयर इज अनदर केस, मान लो कि हमें ऐसा नंबर दिया जाए, मान लो जैसे 10200 ही अगर मैं लूँ और मैं बोल दूँ कि के की वैल्यू यहाँ 2 है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि मान लो के की वैल्यू है लेट्स से 3, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैंने ये रिमूव किया, मैंने ये रिमूव किया, अब क्या हो गया कि आफ्टर, अब एक और जीरो को रिमूव कर सकते हैं बट उससे पहले ही पूरा नंबर क्या बन गया, जीरो बन गया। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि तो ये केस तब होगा, देखो जीरो के लिए एज आई सेड वी हैव टू एक्सप्लिसिटली हैंडल दैट केस, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज, ये जब स्टैक सोल्यूशन हम लिखेंगे, राइट, तो हम टिप वहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं जब नंबर जीरो ना हो, ठीक है, और जीरो को हम स्टैक में डालेंगे ही नहीं। सो इफ़ वी आर नॉट पुशिंग हियर, यहाँ पे हम जीरो डाल ही नहीं रहे स्टैक के अंदर, दैट मीन्स कि जब भी ऐसा केस अराइज होगा जहाँ पे मेरे पास सिर्फ जीरोस बचेंगे, राइट, मैं बाकी डिजिट्स हटा दूंगी, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल गेट my stack empty, right, मेरी stack empty रहेगी, so in that case I can simply return 0. So this is after completing the iteration, ठीक है, तो this case is after completing the iteration, this case also is after completing the iteration. So जब मैं iterate कर रही होंगी string में I will only observe the dips, right, सिर्फ मैं dips को track करूँगी और उन dips को हटाती जाऊँगी। लास्ट में ऐसा भी हो सकता है k में कुछ वैल्यू बच जाए, तो k में वैल्यू बच गई मतलब कुछ ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर है या ऐसे इक्वालिटी है या कुछ भी है, तो उसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। तो हमें पता है यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव, क्योंकि डिप डिप विल श्योरली गेट रिमूव फ्रॉम दी आइट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखा था 2 1 से, टू यहाँ पे 2 1 से रिमूव हुआ है, ठीक है, इट्स हैज़ नॉट बीन रिमूव बिकॉज द इक्वालिटी, ठीक है। अगर मान लो नहीं होता, यहाँ पे 2 2 आ जाता, तो हम लास्ट में जाके यहाँ से रिमूव कर देते हैं ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू solve this question. So I've like covered all the cases here. So now let us go ahead and see the code. So here's the code. So what are we doing? We're taking the stack. So कैरेक्टर की स्टैक ले रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, so there's no need to convert these numbers to like these digits to integers. Alright, then we are starting iterating here. So iterate कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाइल लूप में जा रहे हैं, ठीक है। अब वाइल लूप क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक के बड़ा है और डिप आती जा रही है, आई हैव टू कीप रिमूविंग, राइट, दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग द वाइल लूप। और उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ अगर मैं के में वैल्यू मैं रिमूव कर सकती हूँ और मैं देख रही हूँ स्टैक एम्प्टी नहीं है, तब मैं देखूंगी क्या नम ऑफ आई, क्या स्टैक ऑफ टॉप से छोटा है, दैट मीन्स कि डिप आ गया। डिप आ गया मतलब के माइनस माइनस तो करो, उसके बाद पॉप भी कर दो स्टैक से, ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पॉप करते जाएंगे डिप्स को सारी, ठीक है। तो यहाँ से हम डिप्स रिमूव कर रहे हैं एंड देन हियर, अब ये एक्सप्लिसिटली जो कंडीशन हैंडल करनी है वो है, ठीक है। पुश हम कब करेंगे स्टैक के अंदर, पुश हम तभी करेंगे जब मान लो स्टैक एम्प्टी नहीं है तब, ठीक है। और अगर नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को हम पुश नहीं करेंगे स्टैक में, ठीक है, तो हम नंबर को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, राइट। ऑल राइट, अब आते हैं कि इस इटरेशन के बाद क्या होगा, मेरे जितने भी डिप्स होंगे ना वो रिमूव हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अब जो मेरे बचे हुए केसेस हैं, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया या जीरोस वाली कंडीशन है तो उसको हम यहाँ हैंडल करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे वाइल के बड़ा है और स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो के माइनस में से स्टैक से पॉप कर देंगे। अब मान लो ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर वाज सम डिजिट के भी बचा हुआ है बट स्टैक एम्प्टी हो चुका है, दैट मीन्स कि मेरे पास जीरोज आ रहे थे और अब मेरे पास सिर्फ जीरोज बचे हैं, दैट मीन्स आई कैन सिंपली सी अगर स्टैक एम्प्टी है मतलब कि हमें जीरो रिटर्न करना है, क्योंकि स्टैक इन द लास्ट विल रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, स्टैक के अंदर वही नंबर्स होंगे जो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर बना रहे होंगे, ऑलराइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर हैंडलिंग ऑल द केसेस वी कैन सिंपली टेक दी नंबर्स आउट दी स्टैक। तो यहाँ पे हम नंबर्स बाहर ले रहे हैं स्टैक में, ऑब्वियसली स्टैक का ऑर्डर क्या होता है, लीफो, सो विल गेट दी डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो अगर यहाँ 1219 लिखा था स्टैक के अंदर तो मुझे नंबर मिल रहे होंगे 9121, सो आई हैव टू रिवर्स दिस टू गेट 1219, सो आई विल रिवर्स दिस एंड देन रिटर्न दी आंसर। तो आई होप नाउ द सोल्यूशन इज क्लियर कि हमें क्या करना था क्वेश्चन में, एंड द मेन थिंग वॉज द ऑब्जर्वेशन इफ यू हैव लाइक ऑब्जर्व्ड इट, एंड ऑल्सो हाउ टू हैंडल जीरोज हियर, राइट। सो including both of these things you can solve this question. Now talking about time and space complexity, so the time complexity is big O of n. Now the reason being what you're trying to do here is you are
simply popping some elements, right? ऐसा नहीं होगा. Again, I always say whenever there is a for loop and then there is a while loop, so it doesn't necessarily mean that it's going to be an O(n) square, right? So you have to, whenever you're trying to calculate the time complexity, always take the worst test case, right? worst case लो, worst case में कहाँ तक जा सकता है. तो you will observe कि worst case में यही हो सकता है कि एक particular I के लिए you are popping n times. तो n टाइम अगर पॉप कर दिया, दैट मीन्स अब वर्स्ट केस में यही होगा कि के एन के बराबर हो जाए, के स्ट्रिंग लेंथ के बराबर ही है, ठीक है, और नंबर्स डिप के फॉर्म में ही आते चले जा रहे हैं, ठीक है. तो what you will do is standing at particular I, right, you will go back n times. So in the worst case big O of n plus big O of n time complexity होगी, right? So क्योंकि standing at a particular I you've already removed, right, you've already checked, right, उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे तो n times you will iterate, you will not go inside of this while condition. So this is for the worst case, right? तो worst case में अगर ऐसा हो रहा है तो worst case में effectively big O of 2n होगा, so it is linear only, so the time complexity is linear here. And talking about space complexity, because we are using a stack, so it is also going to be big O of n. So now I hope the solution is clear.